my dear student. Here we have chapter number 2, exploring our neighborhood. Okay. Um, we all live in neighborhood, but have you ever stopped to think about how much our neighborhood actually helps us in our daily life? Think about it. The post office where we send letters, the banks where people keep their money safe, the hospital where we go whenever we feel sick, the school we learn in, the bus stop, the metro station, the market, the flyover, all of these are the part of our neighborhood. And in this chapter, we will take a journey with Navya and her grandfather as they walk through their neighborhood. Through the story, we will learn about how communication has changed from letters to mobile phone. We will learn about how transport like metros and flyovers makes our life faster, how hospital and bank serves as community. We will learn why money saving is very important, isn't it? And we also learn about how we can keep our environment safe while still developing our cities. Okay, one by one we will learn all these stuff. Let's start with the chapter. Here we have exploring our neighborhood on our way back home. Okay, नव्या और उसके ग्रैंडफादर घर की ओर आ रहे थे। जब घर की ओर आ रहे थे तो वो लोग ने बहुत सारा नेबरहुड में चीजें बहुत सारी नोटिस करी और उसके बारे में डिस्कस किया। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। The classes got over and the school bell rang. Students talked with excitement about the wonderful books that their teachers showed them in the library. क्या हुआ? कक्षाएं जो क्लासेस चल रही थी, कक्षा चल रही थी, वो समाप्त हो गई और स्कूल की घंटी बज गई। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, बहुत उत्साहित थे और वो लोग बात कर रहे थे वो ब्यूटीफुल, वो अच्छी सी बुक के बारे में जो उन्हें टीचर्स ने लाइब्रेरी में दिखाई थी। ओके, school buses and e-rickshaws were waiting at the gate. स्कूल बस और जो ई रिक्शा थे वो स्कूल के गेट पे बच्चों का इंतजार कर रहे थे। Navya saw her grandfather standing outside the school gate. Navya ने अपने दादाजी को देखा कि वो स्कूल के बाहर खड़े हैं। She ran up to him. दादाजी, let us take the market route today. तो वो दौड़ के गई दादाजी के पास और बोली कि चलो अब आप दादाजी, आज हम लोग बाजार वाले रास्ते से चलते हैं। ओके, they walked to the bus stop where some people were already waiting for the bus. वो लोग एक बस स्टॉप जहाँ बस रुकती है ना, वहां की तरफ से चले जहाँ पे पहले से लोग खड़े थे और अपनी अपनी बस का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। A bus stop, a bus stopped मतलब a bus stop मतलब एक बस आकर रुकी। The doors opened and everyone boarded the bus one by one. दरवाजा खुला और सभी लोग एक एक करके बस में चढ़ गए। ओके, Navya found a seat by the window and watched the people outside. Navya को एक सीट मिल गई, खिड़की वाली सीट, और वह बाहर जो लोग थे उनको देखने लगी। ओके, as the bus passed a red post box on the corner, Navya pointed to it and said, look, a post box, दादाजी." जैसे ही बस आगे बढ़ी तो एक कोने में लाल पोस्ट ऑफिस के पास या बोलो पोस्ट बॉक्स के पास से वो बस गुजरी। ओके, तो नव्या ने दादाजी को इशारा करते बोला, दादाजी वो देखो पोस्ट बॉक्स। तो दादाजी क्या बोलते हैं? दादाजी सेड, क्या बोले दादाजी? यस नव्या, यू कुड राइट अ लेटर एंड पोस्ट इट हियर। आप चिट्ठी लिख सकते हो और यहाँ आकर पोस्ट कर सकते हो, मतलब उसको डाल सकते हो जो भी एड्रेस पे, वहां के लिए। ओके, ही कंटिन्यूड, उन्होंने फिर आगे बताया। क्या बताया? When I was young, I used to write letter to my brother who was studying in a different city. I used to drop letters into the post box. Then the postman would take them to the post office. The post office would sort letters according to the reason
and send them to their destinations. Post offices offer a variety of other services too. क्या हुआ, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया जब मैं बहुत छोटा था तब मैं अपने भाई को चिट्ठियां लिखा करता था जो किसी दूसरे शहर में पढ़ाई कर रहा था, और वह चिट्ठियां पोस्ट बॉक्स में डाल देता था। फिर डाकिया उन्हें डाकघर में ले जाता था। डाकघर मतलब पोस्ट ऑफिस, ओके। फिर डाकघर में चिट्ठियां क्या होती है, अलग अलग रीजन वाइज। देखो क्या लिखा है, द पोस्ट ऑफिस वुड शॉर्ट लेटर्स अकॉर्डिंग टू द रीजंस, मतलब छांटना, ओके। तो पोस्ट ऑफिस में क्या होती थी, अलग अलग रीजन मतलब अलग स्टेट सिटी, उसके अनुसार सारी चिट्ठियां को छांटा जाता था, और फिर उसके बाद उनको डेस्टिनेशन मतलब जहाँ के लिए आपको चिट्ठी चिट्ठी लिखी है वहां उन चिट्ठियों को भेजा जाता था। पोस्ट ऑफिस ऑफर अ वैरायटी ऑफ अदर सर्विसेज टू। पोस्ट ऑफिस में और भी बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं, ओके। चलो आगे देखते हैं। राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड एंड पोस्ट इट। अब आपके पास एक एक्टिविटी आई है, आपको एक अच्छी सी प्यारी सी लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, अपनी लैंग्वेज में लिख लो और उसको फिर पोस्ट कर सकते हो, ओके। चलो लेटर, एक सैम्पल में लेटर लिख दे रही हूँ, आप अपने तरीके से लिखना। डियर फ्रेंड्स का नाम लिख लेना, फिर वहाँ लिखोगी हेलो हाउ आर यू, आई होप यू एंड योर फैमिली आर डूइंग वेल। मैं मानता हूँ कि आप और आपकी फैमिली अच्छा कर रही होगी, मतलब हेल्दी होगी। आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट माई रिसेंट ट्रिप टू द लाइब्रेरी एंड हाउ आई सॉ अ रेड पोस्ट बॉक्स ऑन द वे। स्कूल के बारे में जैसे जैसे उसने लिखा, वो मतलब जो भी उसने पढ़ा लिखा वो आप लिख सकते हो। It reminded me how people sent letter before we had phones and the internet. So I decided to write you this letter to share the experience, isn't it? In school, we are learning about communication and neighborhood. I enjoyed the chapter, especially the part about metro trains and flyover. Do you have a metro near your house? Please write back to me soon. आप जल्दी लिखना। I would love to read your letters. आप इस तरीके से कोई सिंपल सा प्यारा सा लेटर अपने फ्रेंड को लिख के पोस्ट कर सकते हो, ओके। चलो आगे देखते हैं। Here we have. You can have a field trip to a post office, या फिर आप टीचर को बोल सकते हो कि हमें मैम पोस्ट ऑफिस दिखा दो, isn't it? और आप वहाँ पे क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हो, आप देख सकते हो। You can explore at the post office what? How letters and parcels are stored, how stamps are used, हर लेटर पे स्टैम्प्स कैसे यूज करते हैं, मनी ऑर्डर सर्विसेज कैसे होते हैं, स्पीड पोस्ट वर्सेस रेगुलर पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है, पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी मनी सेविंग स्कीम्स होती हैं, उनके बारे में भी आप चेकआउट कर सकते हो, ओके। हियर वी have you or your family members ever sent or received a letter or a parcel? आपके कोई भी फैमिली मेंबर्स क्या कभी भी कोई लेटर या पार्सल रिसीव किए? देखो पार्सल तो आप लोग के पास आता ही होगा, ऑनलाइन जो भी शॉपिंग करते हैं उनके थ्रू, इजंट इट? और लेटर्स आया है कि नहीं आया ये बताओ, और सेंड किया है कि नहीं? तो you can write simply, yes, my family member has sent letter and received parcel, especially during festival and और birthday, isn't it? जब आपका बर्थडे होता है तो कोई पार्सल भी भेजता है, तो you can write in this manner, okay? How does the post office help people stay connected with each other? पोस्ट ऑफिस कैसे हेल्प करता है? लेटर पहुंचा के। तो यू कैन राइट, a post office help people send letters, parcel and money. They also provide services like speed post, saving account and money orders. Okay, here we are. अब देखो, do you know about this? Long ago, people communicated using drum beats and carving on the rocks. Yes, बच्चों, जो बहुत पहले के टाइम पे ना लोग ढोल बजाकर इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते थे और पत्थरों पे अपने मैसेज को कन्वे करके अपना मैसेज पहुंचाते थे एक जगह से दूसरी जगह, ओके। लेटर मतलब बाद में पीपल स्टार्टेड सेंडिंग लेटर्स कैरिड बाय मैसेंजर्स और पीजन्स। बाद में क्या हुआ, लोगों ने ऐसे जो घोड़ों पे चढ़ के मैसेंजर चलते थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और लेटर पहुंचाते थे, या फिर उन्होंने पिजन्स की हेल्प लेकर भी
लेटर पहुंचाना स्टार्ट किया। उसके बाद क्या, मच लेटर, उसके थोड़े दिन बाद ज़्यादा क्या हुआ, द पोस्टल सर्विसेज केम इनटू बीइंग। इट वाज यूज्ड टू सेंड लेटर्स, पार्सल एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट टू अदर्स। हाँ, उसके बाद धीरे धीरे हमारे लेटर्स वाले मैसेज, लेटर स्टार्ट हो गए भेजने, जिसमें हम लेटर भेजते थे, पार्सल्स भेजते थे और कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भेजते थे। ओके, और उसके बाद क्या हुआ, विद टाइम न्यू इन्वेंशन लाइक द टेलीफोन, रेडियो एंड टेलीविजन मेड इट इजियर टू कम्युनिकेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन। हाँ, समय के साथ साथ रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न जैसे चीज़ें आविष्कार हो गई, इन सब का इन्वेंशन हो गया, तो मैसेज को शेयर करना, मैसेज को कम्युनिकेट करना बहुत इजी हो गया। ओके, and today we have mobile phones and computers that use internet. The internet help us connect with anyone and anywhere in seconds, isn't it? और वैसे अभी के समय हम इंटरनेट की हेल्प से हम कंप्यूटर, मोबाइल फोन जुड़े हुए हैं और हमें कुछ ही सेकंड्स में कहीं भी कम्युनिकेशन कर लेते हैं। व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बहुत सारे आपके पास कम्युनिकेशन मोड है। वाया इंटरनेट यू कैन कम्युनिकेट एनीवेयर। ओके, यस, चलो आगे देखते हैं। Here we have. Did you not have mobile phones? तो वो पूछ रही है कि क्या आपके पास मोबाइल फोन नहीं थे? नव्या ने क्या पूछा ग्रैंडफादर से? डिड यू नॉट हैव मोबाइल फोन्स? क्या आपके पास मोबाइल फोन नहीं थे? तो दादाजी लाफ, बेचारे दादाजी हंस पड़े। वो बताते हैं, नो नव्या, अर्लियर वी यूज टू राइट लेटर्स। पहले के समय में हम चिट्ठियां लिखा करते थे। समटाइम्स इट वुड टेक वीक्स टू गेट अ रिप्लाई। और पहले तो रिप्लाई आने में सप्ताह मतलब 7 days लग जाते थे। And that is a really long time, Navya exclaimed. Yes, Navya बोलती, oh my God, इतना ज्यादा लंबा समय, ये तो बहुत लंबा समय है। फिर दादाजी क्या कहते हैं, yes, with mobile phones and emails, communication is much faster. However, sometimes I miss the joy of writing and receiving a handwritten letter. ऑब्वियस है बच्चों, कम्युनिकेशन देखो, मोबाइल फोन्स और ईमेल से बहुत इजी तो हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट जो लेटर में जो बात होती थी ना, जो हम लोग प्यार से लेटर लिखते थे, उसकी बात एक अलग थी। तो दादाजी बता रहे हैं कि हाँ, मोबाइल फोन और ईमेल से बातचीत तो बहुत तेज हो गई है, लेकिन कभी कभी हाथ से लिखी चिट्ठी पाने और भेजने में मजा ही अलग आता था, इजंट इट? तो अब क्या करोगे, अब अपने जब भी नेक्स्ट फेस्टिवल आएगा, आपका जो भी फेस्टिवल होगा, अपने सारे रिलेटिव को आप लेटर भेज सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Here we have. Discuss with the elders in your neighborhood and find out how they communicated with each other when they were your age. Compare their answer to how you and your friend communicate today and fill in the table below. आपको अपने बड़ों से बात करनी है और उनसे पूछना है कि भाई आप लोग कैसे बातचीत करते थे एक दूसरे के साथ, इजंट इट? और फिर आपको वही चीज अपने फ्रेंड से पूछना है, और आप यार खुद भी फील कर सकते हो कि हम लोग कैसे बात करते हैं, और आपको ये चीज को टैबुलर फॉर्म में लिखना है। ओके, इट्स अ इंटरव्यू विथ योर एल्डर्स। आपके बड़ों के साथ आपका ये संवाद है, डिस्कशन है, और यू कैन से इंटरव्यू है। तो आप उसमें क्या क्या लिखोगे? सबसे पहले आएगा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि वो किस माध्यम से बातचीत करते थे। स्पीड मतलब कितने जल्दी रिप्लाई आता था। फ्रीक्वेंसी कितनी जल्दी जल्दी वो लोग बातचीत करते थे, इजंट इट? लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन किस भाषा में बातचीत करते थे। और चैलेंजेस फेस्ड, क्या परेशानी उनको आई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन अर्लियर टाइम मतलब जब हमारे बड़े लोग हैं, जो हमारे दादाजी लोग हैं, वो लोग लेटर और टेलीग्राम से बात करते हैं। हम लोग किससे बात करते हैं? इंटरनेट से, सोशल मीडिया, टेक्स्ट मैसेज, इजंट इट? सोशल मीडिया में बेटा बच्चा सब आ जाएगा, फेसबुक, इंस्टा सब आ जाएंगे। इंटरनेट इज व्हाट्सएप, मोबाइल फोन, जो भी आपको हो वो सारे कम्युनिकेशन। तो इट मीन्स हम लोग का ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अब स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन में क्या लिखोगे, कि वो लोग कब बात करते थे और हम लोग कब बात करते थे। सपोज करो हम लोग हर सेकंड या हर मिनट में बातचीत कर रहे हैं, या फिर जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे लेटर है वो 7 days में रिप्लाई आता है,
और यदि हम व्हाट्सएप पे ऑनलाइन हैं तो वी कैन रिप्लाई इन सेकेंड्स, इजंट इट? अब होगा फ्रीक्वेंसी, मतलब वो कितनी बार करते हैं। तो देखो, यदि लेटर लिखना है तो ऑब्वियस है जिसका रिप्लाई 7 डेज में आ रहा है, इसका मतलब वो बहुत कभी कभी होगा, और यू कैन से मंथ में एक बार, इजंट इट? ये बहुत हुआ तो 2 बार, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। और बट आप अभी के टाइम पे अपन डेली बात करते हैं, डेली, जिससे भी बात, जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जो भी भाई बहन मम्मी पापा हैं, तो उनसे आप डेली कम्युनिकेट करते हो। सिंपल सी बात है। अब देखो क्या है लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। तो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन में आप प्रॉपर हिंदी राइटिंग या इंग्लिश राइटिंग में प्रॉपर फॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हो। अभी हम लोग चित्र, वीडियो, फोटो, इमोजी सब कुछ भेजते हैं शॉर्टकट, इजंट इट? बहुत सारी चीजों में हम लोग शॉर्टकट भाषा, अलग अलग लैंग्वेज यूज करते हैं। और फिर चैलेंजेस फेस में क्या आएगा बताओ। पहले के टाइम पे क्या हो जाता था, लेटर मिस हो जाता था, एड्रेस के गड़बड़ी से मैसेज गलत जगह पहुंच जाता था या फिर नहीं मिलता था। और अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, अभी इतनी जल्दी मैसेज कम्युनिकेट हो जा रहा है कि गलत मैसेज भी कम्युनिकेट हो जा रहा है, इजंट इट? कोई मैसेज किसी ने देखा, किसी ने वेरीफाई नहीं किया, कम्युनिकेट कर दो, उसको भेज दो, उसको भेज दो। अरे भाई, आपको पता तो होना चाहिए मैसेज सही है नहीं है। तो अभी की प्रॉब्लम है कि कोई भी मैसेज फैल जा रही है। पहले के टाइम पे थी लेटर हमारा मिसप्लेस हो जाता था कई बार। ओके, तो यू कैन कंप्लीट द टेबल इन दिस वे। स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन स्लो था, डेज टू वीक। ये इंस्टेंट है, स्पीड है, ओकेजनली आप कम्युनिकेट करते थे, यहाँ हम डेली कम्युनिकेट कर रहे हैं। फॉर्मल लैंग्वेज मतलब हिंदी या इंग्लिश यूज करते थे, यहाँ हम इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं, इमोजीज, पिक्चर, वीडियो सब यूज करते हैं। चैलेंजेस लॉन्ग डिले, बहुत लंबा लंबा टाइम लगता था, लेटर मिसप्लेस हो जाते थे। और यहाँ पे क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन मतलब गलत इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाती है। और डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, इजंट इट, मैसेज करने में। तो दिस वे यू कैन फिल द टेबल, ओके। और आप अपने बड़ों से पूछकर और भी कुछ लिख सकते हो। चलो आगे देखते हैं। Here we have, over time, the ways in which people communicate have evolved. समय के साथ साथ हम लोग जिस भाषा में या जिस तरीके से हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो अब चेंज हो गया है। While letters were common in past, today message and video calls make communication much faster. पहले के टाइम जो लेटर था, अब के समय मैसेज और वीडियो कॉल से कम्युनिकेशन मतलब बातचीत बहुत इजी हो गई है, बहुत फास्ट हो गई है। Technology has made it easier for us to stay connected with everyone. Obvious है बच्चों, पहले के टाइम पे जब कोई मैसेज हमें भेजना होता था तो 7 दिन तो रिप्लाई में लग जाते थे, और 7 दिन पहुंचने में, 14 डेज में रिप्लाई आता था, सोच के देखो। और अभी मिनट भर में, तो अभी बहुत इजी हो गया है सबके साथ कनेक्शन, सबके साथ बातचीत करना। तो here we have letters, okay, took a long time to reach other person. हाँ भाई, लेटर पहुंचने में आपको समय तो लगता है, you have to discuss this concept, okay. How do you think it affected the communication between people in past? अब बताओ, नॉर्मल सी बात है, समय पहुंचने में, लेटर पहुंचने में इतना टाइम लगता है, तो आपको कितना वेट करना पड़ता होगा। तो यू कैन आंसर, इट कॉज डिले इन शेयरिंग important न्यूज एंड मेड कम्युनिकेशन स्लोअर एंड लेस फ्रीक्वेंट। मतलब जब टाइम ही इतना लग रहा है तो आप कम ही कम्युनिकेट कर पाओगे, इजंट इट? अभी के टाइम कैसे, फॉर एग्जाम्पल अभी तुमने रिप्लाई करा, तो वहां से रिप्लाई आया, फिर तुमने रिप्लाई किया, तो विद इन अ मिनट आप 15-20 मैसेज कम्युनिकेट कर लेते हो, आप उसको भेज देते हो, वहां से आ जाना। पहले के टाइम पे आप एक मैसेज भेजोगे, उसके 7 दिन के बाद तो रिप्लाई आएगा, क्या ही बात करोगे। तो बहुत बहुत धीरे धीरे हमारा कम्युनिकेशन होता था। अब बताओ, how is it different from the way people communicate now? तो यू कैन राइट सिंपली कि अभी के समय हम तो वीडियो कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। पहले के टाइम लेटर भेजना था, तो ऑब्वियस अभी बहुत इजी हो गया है कम्युनिकेशन। तो यू कैन राइट, टुडे वी कैन कम्युनिकेट इंस्टेंटली यूजिंग फोन, मैसेज एंड वीडियो कॉल्स। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Today, quick messages and make sharing the news easier. Yes, but sometimes wrong information spreads very quickly too. अभी जैसे हमने डिस्कस किया था, how can we ensure the news we share is true?
अब ऑब्वियस है, इसका मतलब इसका सबसे इजी तरीका क्या है कि किसी मैसेज को या तो शेयर मत करो, ओके। और शेयर करने के पहले जो भी आपको लगता है कि यहाँ मैसेज करेक्ट होगा, वहां से पहले कंफर्म करो, उसके बाद ही कोई मैसेज शेयर कर दो। यू कैन राइट वेरीफाई विद द ट्रस्टेड सोर्स, मतलब यदि कोई आपको पता है कि हाँ यहाँ पे करेक्ट इंफॉर्मेशन होगा तो पहले वेरीफाई करो। और अवॉइड शेयरिंग बिफोर कंफर्मिंग एंड डोंट फॉरवर्ड मैसेज ब्लाइंडली। कोई मैसेज को ऐसे ब्लाइंडली शेयर करने की जरूरत नहीं है। पहले उस पर प्रॉपर चेक करो कि वो सही है गलत है, उसके बाद ही उसको किसी के साथ शेयर करो। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Here we have the bus took a turn. बस ने जैसे ही मुड़ी, नव्या saw a metro train passing by. नव्या ने देखा कि अरे एक मेट्रो ट्रेन गुजर रही है। तो वो बोलती है लुक एट दैट द ट्रेन इज मूविंग सो फास्ट, एक्सक्लेम्ड। वो चौंकी, बोली देखो कितने तेजी से चल रहा है ये ट्रेन। तो फिर क्या बोले नव्या, द मेट्रो ट्रेन्स ट्रैवल वेरी फास्ट, ऑल्सो देयर आर हाई रोड्स नोन एज फ्लाईओवर, दे हेल्प व्हीकल्स मूव above the busy road and crossing, so they save the time of travelers. उसके दादाजी बोलते हैं हाँ नव्या, मेट्रो ट्रेन बहुत तेज चलती है। इसके अलावा ऊंची जो हाई रोड्स हैं, ऊंची सड़कें हैं, उनको हम कहते हैं फ्लाई ओवर्स। जो ऊंची सड़कें उनको हम क्या कहते हैं, फ्लाई ओवर्स। और वो ऊंची सड़कों से क्या हेल्प मिलता है, हम लोग बिजी रोड्स में ऊपर में जब फ्लाई ओवर बना देते हैं तो हमारा ट्रैवलिंग थोड़ा इजी हो जाता है। रश वहां भी रहता है बट जो एक रोड है जो नीचे है उसके ऊपर में दूसरी रोड है तो रश हमारा कम हो जाता है। तो इट सेव टाइम ऑफ ट्रैवलर्स। ओके, चलो आगे देखते हैं। Here we have a metro. Some flyovers are built for metros and the other are for buses and cars, explained दादाजी। दादाजी ने उसको बताया कि some flyovers are built for metros, जो कुछ flyovers होते हैं वो metros के लिए बने होते हैं, and others are for buses and cars। obvious है, जो metros के flyovers होंगे ना बच्चों, उसमें metro के tracks बने होते हैं, और जो buses और कार के लिए या फिर normal vehicles के लिए होंगे वो रोड की तरह होंगे। ओके, यू कैन डिफरेंशिएट इन बिटवीन देम। Let's say here we have Dadaji continued. These modern facilities and services such as flyovers and metros have made life easier for us. Yes, दादाजी इसको बताते हैं कि जो मॉडर्न फैसिलिटी है जैसे फ्लाईओवर्स हैं, जैसे हमारे पास फास्ट ट्रेन मेट्रोज हैं, तो इनसे क्या हुआ, हमारी लाइफ इजी हो गई। दे हैव मेड life easier for us. Okay, however many animals and birds and trees that used to be here are no longer around because of all these changes. हाँ बच्चों देखो, हर चीज के साथ कुछ हमारे पास डिसएडवांटेजेस आते ही हैं। हर चीज के पास कुछ प्रॉस होते हैं और कुछ कॉन्स होते हैं। तो उसी तरह जब हमने मेट्रो फ्लाईओवर्स पर ब्रिजेस बनाए तो हमने जंगल को कट करा। जंगल को कट करा तो बेचारे जानवर और पक्षियों के घर को खत्म किया। तो इट मीन्स कि अब वो हमें अपने आसपास कम दिखेंगे या फिर ना के बराबर दिखेंगे। तो फ्लाईओवर मेट्रोज और सिटीज की वजह से हम लोगों ने बहुत सारे जंगल को कट करा है, और उनकी वजह से अब बहुत सारे अच्छे अच्छे बर्ड्स, बहुत छोटे छोटे बर्ड जैसे गौरैया होती है, वो हमें अब मेट्रो सिटीज में नहीं दिखते हैं। उसके बाद देखो, Navya replied, I wonder if we can have such developments even while keeping our environment safe and secure. तो नव्या अपने दादाजी को बोलती है I wonder, मतलब if we can have such development, क्या हम ऐसा डेवलपमेंट विकास नहीं कर सकते कि हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ रहे, सिक्योर रहे और हम डेवलप भी करते रहे। इज इट पॉसिबल, वो पूछती है अपने दादाजी से। तो दादाजी क्या कहते हैं, दादाजी सेड यस, दिस कैन हैपन बाय क्रिएटिंग अ बैलेंस। इफ वी प्लांट ट्रीज वी कैन कीप आवर एनवायरनमेंट सिक्योर। दादाजी इसको बोलते हैं हाँ,
यदि हम एक बैलेंस बनाकर रखें, अगर हम पेड़ लगाएं तो हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अब चलो, वी हैव सम क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डू यू यूज द मोस्ट। तो अब देखो बच्चों, ये तो आप अपने अनुसार लिखोगे। यदि आप बस से आते हो तो यू कैन मेंशन बस हियर। यदि आप ऑटो से आते हो तो आप ऑटो लिख सकते हो। बाइसिकल से आते हो बाइसिकल, बाइसिकल, बाइक, स्कूटर, मतलब वॉट एवर मोड यू हैव यूज यू कैन मेंशन। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन ईदर यूज बस, कार, मेट्रो, बाइक, ऑटो। आप अपने अपने अनुसार सिर्फ एक लिखना, या फिर एट मैक्स दो, जैसे कभी बस से आगे, कभी बाइक से, या कभी बाइसिकल से। बट यस, एक से दो से ज्यादा नहीं। ओके, मैंने ऑप्शन के लिए सारे लिख दिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हियर वी हैव ऑल दीज bus, car, metros, bike, auto, bicycle you can add. Okay, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Can you identify the structure in the pictures and explain how they have made travel faster and connectivity better? अब देखो, क्या आप इन पिक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और आपको ये भी बताना है कि इन्होंने जो ट्रैवलिंग है वो कैसे फास्टर किया है, कैसे ये हेल्प करते हैं। ओके, चलो फर्स्टली पहले इमेज तो रिकग्नाइज करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, फ्लाईओवर। द सेकंड वन इज फुट ब्रिज। देखो फ्लाईओवर क्या है, जो रोड के ऊपर रोड बनती है। ओके, एंड फुट ब्रिज किसी भी दो चीजों को कनेक्ट करने के लिए, बट फुट ब्रिज हमेशा पैदल चलने के लिए, गाड़ियों के लिए नहीं है। ओके, द नेक्स्ट वी हैव Can you identify the structures in the pictures and explain how they have made travel faster and connectivity better? क्या आपको ये सारे पिक्चर्स में समझ में आ रहा है कौन सा स्ट्रक्चर है, और इन्होंने कैसे हमारी लाइफ को इजियर बनाया या फिर कनेक्टिविटी को अच्छे किया? क्योंकि सबसे पहले हमारे पास है फ्लाई ओवर, ये रोड के ऊपर रोड्स होते हैं। फुट ब्रिज, मेट्रो ट्रेन, एरोप्लेन, हाई स्पीड ट्रेन एंड केबल कार। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोगों को कैसे हेल्प कैसे किया है इन लोगों ने। सबसे पहला है हमारे पास फ्लाई ओवर। फ्लाई ओवर क्या है, ये रोड के ऊपर रोड है, तो इट हेल्प्स व्हीकल अवॉइड ट्रैफिक बाय मूविंग अबव बिजी रोड। इट सेव्स टाइम एंड रिड्यूसेस कंजेशन। मतलब जो रश होता है हमारे रोड पे, जो ट्रैफिक जैम होता है उसमें, उसको बहुत हद तक बहुत कम कर देता है जो फ्लाई ओवर्स होते हैं। ओके, अब देखो फुट ब्रिज। तो फुट ब्रिज क्या होता है कि किसी भी दो जगह को ज्वाइन करने का काम होता है। तो यहाँ पर सिर्फ लोग जाते हैं। ओके, यहाँ पे गाड़ियां मूव नहीं करती, सो इनको हम फुट ब्रिज कहते हैं। इट हेल्प्स people cross rivers or roads safely, especially in areas where there is no traffic lights. Okay, मतलब कोई भी एरिया, कोई हिली एरिया है, कोई आपको कह सकते हो कोई नदी है, कोई नाले हैं, तो उनको क्रॉस करने के लिए हमने एक सिंपल सा फुट ब्रिज बना दिया होता है, उस पे लोग पैदल चलते हैं। ओके, द नेक्स्ट वी हैव मेट्रो ट्रेन। मेट्रो ट्रेन तो यार बहुत ही फायदेमंद है। इट्स अ फास्ट पॉल्यूशन फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एसी में बैठ के आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। थोड़ा रश होता है बिकॉज सभी प्रेफर करते हैं, बट यस इट्स अ वेरी कन्वीनियंट टू यूज। It connects different part of the city and quickly and efficiently. तो आप मुझे मेंशन करना कि आपके सिटी में मेट्रो ट्रेन है या नहीं। ओके, यू कैन मेंशन द नेम ऑफ योर सिटी और से यस और नो। ओके, हियर वी हैव एरोप्लेन और एयरप्लेन, दोनों सेम ही चीज है। एक हमारी अमेरिकन इंग्लिश है, एक हमारी ब्रिटिश इंग्लिश है। ओके, दोनों बोल सकते हो क्योंकि हम लोग तो इंडियन है, बट यस वी यूज ब्रिटिश इंग्लिश। तो फिर ये क्या है, ये फास्टेड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, यूजफुल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल अक्रॉस सिटीज और कंट्री। यस, इट्स द बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन, झट से पहुंच जाओगे एक जगह से दूसरी जगह। और देन नेक्स्ट वी हैव हाई स्पीड ट्रेन, जैसे कि हमारे इंडिया में है वंदे भारत, इजंट इट? इट कनेक्ट्स डिस्टेंस सिटीज फास्टर देन रेगुलर ट्रेन्स। इट्स कंफर्टेबल एंड टाइम सेविंग। ऑब्वियसली देन नेक्स्ट वी हैव केबल कार्स। केबल कार ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत मजा भी आता है केबल कार में ट्रैवल करने में, समझा?
It useful in hilly areas for tourism. It connects places that are hard to reach by road. रीच बाय रोड क्या बच्चों, वहां रोड बनाना ही बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट यू कैन यूज केबल कार। वहां पे आप अच्छे अच्छे केबल कार कर लो और बहुत जल्दी से पहुंच जाते हो, इजंट इट? या फिर रोड के से आप जितने टाइम लगा के पहुंचोगे, केबल कार से आप बहुत जल्दी से पहुंच जाओगे। इसमें छोटे छोटे रूम्स बने होते हैं और उन रूम्स में अपन बैठे होते हैं और वो केबल के थ्रू ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और जिसने इसने ट्रैवल किया है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। You can share experience, isn't it? अब देखो, how did your parents and grandparents go to school or other places when they were young or they were at your age? Is it different from how you travel today? Note it down below. अब ये सोचो कि तुम, क्या वो लोग कैसे ट्रैवल करते थे, isn't it? अपने जैसे अपने टाइम पर जब वो स्कूल जाते थे तो वो किसके थ्रू ट्रैवल करते थे, वो किस प्रकार का ये मतलब कह सकते हो मोड यूज करते थे टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या फिर स्कूल जाने के लिए कैसे स्कूल जाते थे। तो आपको अपना लिखना है, अपने पेरेंट्स का लिखना है और अपने ग्रैंड पेरेंट्स का लिखना है। तो यू कैन मेक द टेबल इन दिस मैनर, ओके। यू आप कैसे जाते हो, स्कूल बस, कार या मेट्रो से। पेरेंट्स कैसे जाते होंगे, प्रोबेबली बाइसिकल और बस से। और आपके ग्रैंड पेरेंट्स मोस्टली वॉक करके जाते होंगे या बुलक कार्ट या बैलगाड़ी यूज करते होंगे, या समटाइम्स दे मे यूज बस आल्सो, ओके। Okay, here we have. After some time, a few people got down at a bus stop which was near a hospital. Navya noticed a banner outside the hospital said that eye checkup camp. Many people were going to that hospital. फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद बस स्टॉप रुकी और वो हॉस्पिटल के पास से थी। तो नव्या ने देखा हॉस्पिटल के बाहर एक बैनर लगा हुआ था और उस पे लिखा था आई चेकअप कैंप, दैट इज आंखों का जांच वाला कैंप को कहते हैं शिविर, ओके। तो वहां पे बहुत सारे लोग जा रहे थे। तो नव्या ने पूछा एकदम शॉक्ड होकर, आश्चर्य होकर, व्हाट इज दिस, व्हाई आर सो मेनी पीपल कमिंग हियर, शी आस्क्ड। हर आईज गॉट वाइड विथ वंडर, वो एकदम आश्चर्य हो गई, यह क्या है, इतने लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं। दादाजी ने रिप्लाई करा, दादाजी रिप्लाइड, Navya, this is a hospital. People come here when they are unwell. तो बता रहे दादाजी कि बच्चों, नव्या यह अस्पताल है, लोग यहाँ तब आते हैं जब वो अनवेल मतलब बीमार होते हैं। फिर वो बता रहे, आई ब्रॉट योर grandmother here for her eye operation a few years ago. The doctor helped her see better and it made a huge difference to her life. वो बता रहे हैं कि मैं तुम्हारी दादी जी को कुछ साल पहले ऑपरेशन कराने, आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए लाया था। डॉक्टर ने उनकी आईज को सही कर दी, तो मतलब उनको दिखने लग गया। तो यू कैन से उन्होंने, इट मेड अ ह्यूज डिफरेंस, उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस हो गए। पहले उनको दिख नहीं रहा था प्रॉपरली, अब वो उनको प्रॉपरली दिखने लगा, इजंट इट? दिस हॉस्पिटल इज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी एंड टुडे इट इज ऑर्गेनाइजिंग एन आई चेकअप कैंप। वो बता रहे हैं कि हमारे कम्युनिटी का, हमारे समुदाय का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हॉस्पिटल, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है अस्पताल। और यहाँ पे आज आंखों की जांच की शिविर लगाई गई है। चलो आगे देखते हैं। Here we have some more thing. List the people who works at a hospital or a health center and write down their role in the following table. One example has been given below. डॉक्टर्स क्या करते हैं, दे ट्रीट पेशेंट एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन। वो पेशेंट को चेक करते हैं, जो बीमार लोग होते हैं उनको मेडिसिन देते हैं, ठीक है। और फिर नर्सेस के बारे में, फिर वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट होते हैं, क्लीन करने वाले लोग होते हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर होता है, फिर फार्मासिस्ट होते हैं जो दवाई देते हैं। तो यू कैन मेंशन देयर नेम एंड देयर रोल, लाइक फार्मासिस्ट, नर्स क्या करती है, केयर फॉर पेशेंट्स एंड असिस्ट डॉक्टर्स। फार्मासिस्ट, दे गिव्स मेडिसिन एंड प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, जो भी डॉक्टर मेंशन करते हैं वो दवा देते हैं। रिसेप्शनिस्ट क्या करती है, आपका नेम रजिस्टर करती हैं और स्केड्यूल अपॉइंटमेंट करती हैं।
क्लीनर आपके हॉस्पिटल को क्लीन करता है. एम्बुलेंस ड्राइवर दे ब्रिंग्स पेशेंट टू द हॉस्पिटल इन इमरजेंसी. यही काम करता है ना एम्बुलेंस ड्राइवर, isn't it? I think that's enough for today, बच्चों. We will discuss the next part, or probably we will finish the chapter in our next video. Okay. Thank you everyone.